brain development and the yogic practices. So when we consider Ashtanga Yoga, all limbs of yoga, when you follow that helps to modify some brain mechanism. That means if you just take the oath that from tomorrow I will wake up at 5 o'clock in the morning, and if you follow it regularly, that makes a new discipline. At that time, your cerebral cortex learn how to control the limbic system and related structures to control or to adopt this new habit. And because of that, you see, after 2 3 weeks, automatically you wake up at 5 o'clock. And that indicates now your involuntary system, now your limbic and autonomous system learn to adopt the new discipline. And then it become your habit. Okay. Same thing happen in all other small habits that you take and you succeed in that. This is a training. So that means when you follow such yama and niyama activities, your cortex learn to control the limbic centers, to control the autonomous centers, and it succeeds in that. And finally, after a few weeks, they adopt that new discipline, and your brain works automatically for that discipline. If you start to take breakfast at 9 o'clock every day, then your hypothalamus learn the automatic mechanism, and that's how you see uh, uh, at the time of 9 o'clock, the hypothalamus create the alertness to the digestive organs. Now this is your time, and now be ready for your work. Okay, this is something, how the yogic practices helps to modify the brain mechanism. Now we will try to understand in detail in a simple way. And to understand it, we will see the brain or we will learn the brain at three levels. Functionally, we can divide the brain into three levels. The upper level, that is the two big hemispheres of the brain, that is the part of cerebrum. Okay, and which is externally covered by the neurons, the nerve cells, which is in other words called as a gray matter. Hmm. This is the intellectual part of the brain. So your perception, your thought process, your interpretation, your imagination, your decision making, and then your motor order, that voluntary motor order, that all proceeds from your upper part of the brain. Okay. In that, your frontal lobe is more for the interpretation analysis. Hmm. And then the middle part of the brain, that is the base of cerebrum, and the inner part of the cerebrum, that is called as the limbic system, and this is the emotional part of the brain. So so it contains hippocampus, which preserve the long term memory. Then there are two more special emotional centers. One is the pleasure center, and one is the pain center or phobia center, that is called as the amygdala body or amygdala. And they express their, and that means how we express our emotions through these centers. So these centers are well known to express particular emotion, the pleasure sensation and the pain sensation. And these both centers now are communicated with the autonomous center, main autonomous center, that is the hypothalamus. Anatomically it is situated in that limbic system. Okay, but it is independent structure. Remember, our hypothalamus is the manager of your all internal activities. And that's how you see hypothalamus can work with its natural rhythm also, but it can be influenced by these emotional centers. And then, along with hypothalamus, the lower part of the brain uh, is called as the autonomous brain, autonomous part of the brain, which controls all involuntary activities. So I am speaking with you at that time. Our digestion, respiration, circulation, metabolism, that all processes are happening. That happen in our deep sleep also when you are unconscious. That happen in your coma also. That means hmm, someone take the care of that all activities, and that is the hypothalamus.
Okay, and that's why hypothalamus is a great manager of internal activities, which controls all these internal activities autonomously, स्वायत्त. ओके, सो हाइपोथैलेमस जो है वो अपने रिदम में काम करने वाला एक छोटा सा स्ट्रक्चर है. And that's why we are not aware about the liver activity, we are not aware about the kidney activity, what is happening inside. But hypothalamus is aware about all these things, and hypothalamus regulate all these mechanisms. And that's why hypothalamus is called as a biological clock. You see, biological clock, mensuration का जो रिदम है 28 दिन का, वो भी hypothalamus अच्छे से मैनेज करता है. इट इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक. तो पूरे दिन भर की जो एक्टिविटी है, सवेरे उठना है, कब ब्रेकफास्ट लेना है, कब लंच लेना है, कब डिनर करना है, कब एक्सरसाइज करना है, all these activities are well rhythmized by hypothalamus. And according to that, the metabolism is also rhythmized by hypothalamus. तो दिन भर जो प्रोटीन आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहे हैं, फैट आ रहा है, तो उनका मेटाबॉलिज्म कैसे करना है, उसका जो रिदम है, वो भी हाइपोथैलेमस सेट करता है. ठीक है? तो आप देखो कि if the rhythm of hypothalamus is more towards the nature, more natural, then all physiological activities will be natural. अपने रिदम में होंगी. Hmm. And if the rhythm of hypothalamus is disturbed, then definitely there is a disturbance in the physiological activities. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अभी बहुत मुझे अभी बहुत भूख लगी है और मैं अभी बस खाना खाने वाला ही हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी ने संकेत दिया है कि आपको भूख लगी है, तो हाइपोथैलेमस विल क्रिएट द सेंसेशन ऑफ हंगर और वो बता देता है कि अब आपको कुछ खाना ढूँढो और खाना खा लो. और ऐसे में अगर आपको एक ऐसे मैसेज आता है, "अरे! क्या हुआ? अरे! ऐसा नहीं होना चाहिए था." और आप अपसेट हो जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो. और उस वक़्त क्या होता है? अचानक आपकी भूख गायब हो जाती है. अरे थोड़ी देर पहले शरीर ने ये नीड क्रिएट कर दी थी, हाइपोथैलेमस ने हंगर का सेंसेशन क्रिएट भी किया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या मैसेज आ गया, अचानक आप ऐसे कैसे अपसेट हो गए कि अब हाइपोथैलेमस अचानक वो सेंसेशन बंद ही कर देता है. और फिर कोई कहता है, "अरे खाना खा लो," वो कहता है, "नहीं मुझे अब भूख नहीं है, मूड नहीं है, अब बिल्कुल खाने का मन नहीं है," और आप नहीं खाते. इसका मतलब जो कुछ भी एक हल्का-सा स्ट्रेस आ गया, उसके कारण जो हमारे इमोशनल सेंटर्स है, जो एक्टिवेट हो गए, उन्होंने एक स्ट्रेस क्रिएट कर दिया, एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट किया, अब ये अपसेट माइंड क्रिएट किया. लेकिन उसके कारण, उसके प्रभाव के कारण हाइपोथैलेमस का जो हंगर का फंक्शन है, डाइजेशन का फंक्शन है, डिस्टर्ब हो गया और आप खाना नहीं खाते. और ऐसे में भी आप खाना खाते भी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खाना खा लिया था और उसके बाद फ़ोन आ गया. तो अच्छे से खाना खा लिया, लेकिन बाद में फ़ोन आ गया और आप टेंशन में कल सवेरे ही बॉस आने वाले हैं। अरे! ऐसे कैसे आ सकते हैं? अगले हफ्ते आने वाले थे। अब वो टेंशन आ गया कि जो बॉस 1 हफ्ते के बाद आने वाला था चेकिंग के लिए, वो कल ही आ रहा है और आपका काम पूरा नहीं है। तो पूरे रात भर जो स्ट्रेस रहता है, अब देखो, इस कंडीशन में जो स्ट्रेस मैकेनिज़्म एक्टिवेट होता है, जिसके कारण आपका हाइपोथैलेमस का रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। आप कितनी आसानी से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब कभी कोई स्टेज पर जाता है, तो जाते-जाते उसको इतना टेंशन आता है कि उसका गला ऐसे सूख जाता है। आप देखो, इसका मतलब वो इमोशनल सेंटर ने हाइपोथैलेमस के रिदम को सडनली डिस्टर्ब कर दिया और उसके कारण आपके सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज़, स्टमक, इंटेस्टाइन सबके सिक्रीशन अचानक कम हो गए। मानो जैसे झरा हटला, हम कहते हैं ना कि वो झरना जो था वो बहने का एकदम रुक ही गया। इतना हो जाता है, कितना प्रभाव पड़ता है विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. तो ये जो प्रभाव है, वो पूरे शरीर पर कितने प प जल्दी आ जाता है और जितने देर तक स्ट्रेस रह जाएगा, उतने देर तक आपके सिक्रीशंस कम हो जाएँगे, आपका डाइजेशन डिले हो जाएगा, हो सकता है आपका इंडाइजेशन हो जाएगा. तो जैसे डाइजेशन का रिदम डिस्टर्ब हो गया, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में भी तनाव आ जाता है, वो हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी रिस्पायरेशन का रिदम बिगड़ जाता है. यही बात ओवरऑल मेटाबॉलिज्म की है कि आपका मेटाबॉलिक लोड बढ़ जाता जाता है और उसके कारण
बाद में थोड़ी देर के बाद पूरी बॉडी फटीग की स्टेट में चली जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इमोशनल सेंटर्स एक बार ओवर एक्टिवेट हो गए, इरिटेट हो गए, तो वो हाइपोथैलेमस जैसा जो नेचुरल रिदम वाला सेंटर है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको ही पकड़ लेते हैं और उसको ही इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी की जो अलग-अलग सिस्टम की जो एक्टिविटी है, सब में बाधा आ जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी देखेंगे तो मेंस्ट्रुएशन का रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, वो स्पैज़्मेटिक हो जाता है, मेल में इम्पोटेंसी आ जाती है। वैसे ही मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हो गया, तो टॉक्सिन से वो उसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो जाएगा, तो फिर एलर्जिक रैशेज़ आ जाएँगे या एलर्जी से रिलेटेड सारे डिसीज़ हो जाएँगे। ये सब कुछ वहाँ से होने वाला है और इसलिए हम कहते हैं, इफ यू वांट टू कीप the natural rhythm of physiological activities, if you want to keep your health, you need to keep the natural rhythm of hypothalamus. तो आपके हाइपोथैलेमस अपने इमोशनल सेंटर्स के इन्फ्लुएंस में कम से कम रहे और अपने नेचुरल रिदम पर काम करे। अगर ऐसा आप करने में सक्सीड हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे एक हेल्दी एंड फिट लाइफ जीने के लिए। तो फिर आपकी कोई मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट नहीं होगी, आपका कोई मेटाबॉलिक डिसीज़ बढ़ नहीं जाएगा। इन फैक्ट आप एक हेल्दी लाइफ जियोगे। तो जिसका हाइपोथैलेमस लंबे समय तक नेचुरल रिदम पर काम करता है, उसमें कोई साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर नहीं, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं, कोई आगे जाके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या कैंसर जैसे मैलिग्नेंसी डिसऑर्डर नहीं है। ये सब हो सकता है। लेकिन उसके लिए अब हमें सोचना है कि ऐसा क्या करेंगे कि हाइपोथैलेमस थोड़ा इमोशनल सेंटर से प्रभावित ना हो। उसके लिए हमें हमारे इमोशनल सेंटर्स जो है, उनको शांत रखना पड़ेगा, ठीक है? वैसे शांत रखने के लिए आजकल मेडिकल फैकल्टीज़ तो मेडिसिन देती ही हैं। इसलिए जैसे ही टेंशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, एंग्ज़ायटी डिप्रेशन हो, अलग-अलग प्रकार के पैनिक फोबिक कंडीशंस आ गए और वो टेंशन में आ गया, तो डॉक्टर के पास जाएगा, तो वो क्या करेगा? एंग्ज़ायटिक देगा, एंटी डिप्रेसिव देगा। वो एक केमिकल है और उस केमिकल के कारण कुछ देर तक यानी कुछ घंटों तक आप अपने इमोशनल सेंटर्स को शांत रखने में सक्सीड हो जाएँगे। लेकिन फिर नया प्रोग्रामिंग आएगा कि इन केमिकल के कारण हम शांत रहते हैं, हमें ये केमिकल चाहिए। तो वही ड्रग डिपेंडेंसी आ जाएगी और आगे जाके वो मेन प्रॉब्लम तो दूर रह गया, लेकिन ये ड्रग डिपेंडेंसी यही एक प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि बाहर का जो रास्ता है, जो एक्सटर्नल वेपन है, उसको हम कम यूज़ करें और हम ऐसे कुछ केमिकल्स बॉडी के अंदर ही तैयार करें, ब्रेन के अंदर ही तैयार करें, जो ब्रेन के ये जो इमोशनल सेंटर्स है, उसको शांत करे या कॉर्टेक्स में जो अननेसेसरी थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स है, सुसाइडल थॉट्स है या डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है, उसके जो न्यूरल कॉम्प्लेक्स है, उसको तोड़ दे। तो ऐसे कुछ केमिकल्स हैं, तो हैं। हमारा ब्रेन जो है, वो लगभग 30 से 40 प्रकार के छोटे-छोटे केमिकल्स तैयार कर लेता है, अलग-अलग प्रकार के, जिसको हम न्यूरोपेप्टाइड्स या न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। सारा केमिकल का खेल है और इस केमिकल से ये ब्रेन प्रभावित होता रहता है। हम ब्रॉडली इन सारे केमिकल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्साइटिंग केमिकल और एक है कामिंग केमिकल। हम डिप्रेसिंग ये शब्द यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डिप्रेशन ये शब्दों ने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, इसलिए हम उसको कहेंगे कामिंग केमिकल्स। दोनों की ज़रूरत है, यानी जब मैं रोड को क्रॉस कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी क्षण के लिए एक्साइटिंग केमिकल की ज़रूरत है, तो अचानक मैं मेरी क्रिया बढ़ाता हूँ, है ना? मुझे कोई विगरस काम करना है, माउंटेनिंग करना है, रनिंग करना है, उस वक़्त मुझे एक्साइटिंग केमिकल की ज़रूरत है। आज हम जो एक्साइटिंग केमिकल की बात करते हैं, वो कौन-सा है? डोपामाइन है, नॉरएड्रेनालिन है, ठीक है? तो ये एक्साइटिंग केमिकल्स में आ जाएँगे और वही कामिंग केमिकल्स जो है, क्वाइटनिंग केमिकल्स है, उसमें क्या नाम आएँगे? उसमें एंडोर्फिन आएगा, उसमें गाबा आएगा, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड आएगा, उसमें फिर सेरोटोनिन आ जाएगा, मेलाटोनिन आ जाएगा, एनकेफेलिन आ जाएगा, 5 हाइड्रॉक्सी इंडोलिएक्टिक एसिड आएगा। तो ऐसे ब्रॉडली हम ये 2 प्रकार के केमिकल कंसीडर करेंगे। तो आप देखो, जिस व्यक्ति में ये इमोशनल सेंटर्स बार-बार फायर हो रहे हैं, बार-बार इरिटेट हो रहे हैं, ओवर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो उनको एक्टिवेट कौन कर रहा है? उनको एक्टिवेट करने वाला केमिकल कौन-सा है? डोपामाइन।
हुँ, तो ये डोपामाइन टॉक्सिसिटी हो गई। कुछ-कुछ लोग तो 24 घंटे इरिटेट रहते हैं। कौन-सा भी क्वेश्चन पूछो, टाइम क्या हुआ? मुझे क्या मालूम? इतना इरिटेट होने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये उनकी आदत बन गई। क्यों आदत बन गई? क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर डोपामाइन का सिक्रीशन मानो जैसे एक ऑटोमैटिक मैकेनिज़्म बन गया। अब बिना वजह वो फायर हो रहा है, बिना वजह तैयार हो रहा है। बिकॉज़ एनीथिंग यू रिपीट बिकम ऑटोमैटिक। तो हो सकता है पहले 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 महीने आप स्ट्रेस में थे, उसके कारण बार-बार डोपामाइन सीक्रेट हो रहा था। अब ये बार-बार डोपामाइन सीक्रेट होने की जो एक्टिविटी हो गई, तो वो रिपीट हो गई और रिपीट हो गई, तो वो ऑटोमैटिक हो गई। तो बाद में 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपका जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, वो निकल गया। अब वो स्ट्रेस निकल गया, लेकिन फिर भी ब्रेन ने जो एक ऑटोमैटिसिटी अडॉप्ट की है, वो तो बिना वजह फायर हो रही है। आप कभी-कभी ऐसा म अनुभव करते हो, मानो जैसे कभी पेशेंट के फैमिली जब मेरे सामने आती है, तो वो कहती है, पिछले साल उनको ऑफ़िस में बहुत डिस्टर्बेंस था। सारे लोग उनको टॉर्चर कर रहे थे, कोई उनको कोऑपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए वो बहुत इरिटेबल होते थे और घर में भी सारा इरिटेशन दिखाते थे और हम वो सह रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन अब उसके बाद अब इस साल में उनका ऑफ़िस बदल गया है, अब वो वहाँ के बॉस है, सारे लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, अब तो कोई टेंशन नहीं है। फिर भी उनकी इरिटेबिलिटी जैसी की वैसी है, जैसी पिछले साल थी। और इस संदर्भ में उस व्यक्ति को हम पूछेंगे, "क्यों भाई आप इरिटेट होने का क्या कारण है?" तो वो भी कहेगा, "पता नहीं मैं कैसे इरिटेट हो जाता हूँ।" वैसे कोई कारण नहीं है, पिछले साल स्ट्रेस था, लेकिन इस साल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ही पता नहीं है मैं ऐसे कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, मुँह से निकल जाता है। क्योंकि ऐसे रिएक्शन देना उसका स्वभाव बन गया, उसकी हैबिट बन गई। क्यों? क्योंकि डोपामाइन का सीक्रेशन हो जाना, ये उनकी हैबिट बन गई। ऑटोमैटिसिटी। अब ब्रेन ने ये ऐसे ऑटोमैटिसिटी क्रिएट की कि उसको कंट्रोल करने के लिए जो दूसरे केमिकल्स तैयार करने हैं, वो अब कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यानी डोपामाइन का प्रभाव कम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ब्रेन ने दूसरे केमिकल्स क्रिएट भी करने चाहिए। लेकिन वो मानो जैसे ब्रेन भूल ही गया है और इसके कारण केवल एक्साइटिंग केमिकल्स का प्रभाव रहेगा, तो फिर इरिटेबिलिटी ही रहेगी और फिर स्ट्रेस मैकेनिज़्म जारी रहेगा। आपको एसी में भी बैठाया, तो भी आप अस्वस्थ और आपको बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में बिठाया, तो भी आप अस्वस्थ हो हळू जाएँगे। हळू हळू गडी काय झालं? हॅलो? कंटिन्यू, 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 कंटिन्यू. अ, कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? हं, हं. नाही, नाही ते अनम्यूट झालं होतं. ठीक है। तो देखो ये बात है कि कुछ लोगों को स्ट्रेस की हैबिट बन जाती है। कुछ लोगों को नेगेटिव सोचने की हैबिट बन जाती है। लोग बोलते हैं तुम बार-बार नेगेटिव सोच रहे हो। हर बार तुम नेगेटिव कैसे सोचते हो? आदत बन गई। हर बार वो हिस्ट्रियोनिक रिएक्शन दे रहा है। हर बार पैनिक रिएक्शन दे रहा है, फोबिक रिएक्शन दे रहा है। हर बार वो ऑब्सेशन दिखा रहा है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये ऑटोमैटिसिटी है और इस ऑटोमैटिसिटी के पीछे क्या है? ये डोपामाइन का सिक्रीशन एक ऑटोमैटिक मैकेनिज़्म बन गया और मानो जैसे एक डोपामाइन टॉक्सिसिटी हो गई, ठीक है? तो जो केमिकल आवश्यक है, अब वो अति मात्रा में हो गया, तो कम से कम अब हमें क्या सोचना चाहिए कि उसके विपरीत जो कामिंग केमिकल्स है, क्वाइटनिंग केमिकल्स है, उनको बढ़ाओ। यहाँ यौगिक प्रैक्टिसेस का महत्व है। आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हो, आप स्लो डीप ब्रीथिंग का अभ्यास कर रहे हो, ओम चैंटिंग का अभ्यास कर रहे हो या किसी भी तरीके से एक सिंपल प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हो अपने अपने तरीके से पूरक रेचक हो या पूरक कुंभक रेचक हो यथाशक्ति। एक 20 मिनट तक प्राणायाम करने के बाद मानो जैसे 20 मिनट मैंने भ्रामरी का अभ्यास किया। एट द एंड ऑफ 20th मिनट क्या दिखने वाला है? 20 मिनट के बाद आपका एक्सपीरियंस ये है कि आपका पल्स रेट कम हो गया, आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो गया, आपके बॉडी में हल्कापन आ गया, आपका सिर दर्द कम हो गया, आपके सिर में हल्कापन आ गया। और अगर उस वक़्त आप ये न्यूरोट्रांसमीटर चेक भी करोगे, तो पता चलेगा कि जो कामिंग केमिकल्स है, वो सीक्रेट हो गए हैं। तो एंडोर्फिन सीक्रेट हो गया। एक 20 से 30 मिनट तक आप प्राणायाम करो, आपका एंडोर्फिन अच्छी मात्रा में सीक्रेट होकर एक शांति लाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब देखो कि हाउ योगिक प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंसेस द ब्रेन मैकेनिज़्म। तो मैं कहूँगा कि जो हमारे आसनों की प्रैक्टिस है, प्राणायाम की प्रैक्टिस है या मंत्रा चैंटिंग की प्रैक्टिस है या आगे जाके मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, इन सब में एक चीज़ होने वाली है
कि आपके ब्रेन के अंदर ये कामिंग केमिकल्स फटाक से बढ़ने वाले हैं। 20 से 30 मिनट काफ़ी है। इसलिए जब भी कभी मैं एक्सपेरिमेंट देता हूँ प्राणायाम का, लोगों को बताता हूँ कि कम से कम 20 मिनट करो। हुँ, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं। ये मैगी की तरह इतने जल्दी नहीं काम करेगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स तैयार होने हैं, तो तैयार होने के लिए कुछ तो टाइम दे दो। हुँ, तो 20 मिनट का अभ्यास 1 मिनट में भ्रामरी के 4 या 5 राउंड हो जाएँगे, तो 20 मिनट में भ्रामरी के कितने 70-80 राउंड हो जाएँगे। तो देखो कि इतना अगर हमने भ्रामरी का अभ्यास किया, तो वो वाइब्रेशन के प्रभाव से हमारे ब्रेन के अंदर ये एंडोर्फिन, सेरोटोनिन अपने आप सीक्रेट होने लगेंगे। ठीक है? तो ये एकदम सरल उपाय है कि जब भी कभी आप स्ट्रेस में हो और आपको स्ट्रेस की हैबिट हो गई हो, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको एक छोटा-सा रिलैक्सेटिव प्रयोग करना है। इसके लिए मैं बताऊँगा, स्लो डीप ब्रीथिंग का आधार ले लो, कि आपका ब्रीथिंग थोड़ा धीमा कर लो। अब यहाँ हम कोई ऐसा डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स क्रिएट नहीं करेंगे कि आप ऐसा करो, 10 सेकंड तक साँस अंदर ले लो और धीरे-धीरे 20 सेकंड तक छोड़ दो। भाई पहले से ही वो स्ट्रेस में है, अब और नया स्ट्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हठप्रदीपिका इसके बारे में उसको बहुत अच्छा सलाह देती है। वो क्या कहती है? यथाशक्ति च रेचयेत, यथाशक्ति च पूरयेत। अपनी ताकत के अनुसार, अपने कम्फर्ट के अनुसार, नो मैथमेटिक्स। एक धीरे से साँस अंदर ले लो, धीरे से छोड़ दो, ठीक है? कितने भी सेकंड की हो, धीमा कर लो ना, थोड़ा ब्रीथिंग को धीमा कर लो। तो जैसे ही हम ब्रीथिंग को धीमा कर देते हैं, हमारा हाइपोथैलेमस पहचानता है कि ब्रीथिंग धीमा हो गया है और जैसे ही हाइपोथैलेमस ये पहचानता है कि ब्रीथिंग धीमा हो गया है, तो हाइपोथैलेमस का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अब ऑक्सीजन की एंट्री बॉडी में धीरे से हो रही है। अकॉर्डिंग टू दैट, हाइपोथैलेमस मैच द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। क्योंकि सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए और उसका आधार है ऑक्सीजन और ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ तो बॉडी में होता ही रहता है, हमने वो स्टोर करके रखा है। ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर पाते, इसलिए जिस गति से ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, उस गति से हाइपोथैलेमस को मेटाबॉलिज़्म मैच करना पड़ता है। इसीलिए स्ट्रेस में क्या होता है, ज़रूरत बढ़ती है, तो हाइपोथैलेमस साँस की गति बढ़ाता है, मेटाबॉलिज़्म की गति भी बढ़ाता है। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में जानबूझकर ऊपर की ऑर्डर आ जाती है, देखो मैंने कहा है ब्रीथ स्लो होनी चाहिए। इट इज़ अ कॉर्टिकल ऑर्डर, वॉलंटरी ब्रेथ रेगुलेशन। बस एक कॉर्टिकल ऑर्डर होती है कि धीरे से साँस ले लो, धीरे से छोड़ दो। लेकिन इसके कारण हाइपोथैलेमस को अपना पहले वाला जो डिसीज़न है वो चेंज करना पड़ता है। तो जो स्ट्रेस का मैकेनिज़्म चल रहा था, हाइपोथैलेमस ने सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया था, उसके कारण हार्ट रेट बढ़ गया था, उसके कारण मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया था। अब जैसे ही मैं ब्रीथिंग को थोड़ा स्लो डाउन करता हूँ, अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन होती है, आपकी वेगस नर्व एकदम एक्टिवेट हो जाती है, तो वो हमारे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है उस पर नियंत्रण रखती है। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक लोड कम कर देती है, बाकी बढ़ा हुआ हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर सब डाउन कर देती है और एक रेस्ट यानी एक हल्कापन लाती है। तो देखो कितने छोटे प्रयोग होते हैं, उस प्रयोग का आधार लेकर हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए आज हैरिसन मेडिसिन जैसे बड़े मेडिसिन के बेसिक बुक में भी ये अ, टाइटल अलग रखे हैं क्योंकि जब नए साइंटिस्ट इसके ऊपर प्रयोग करते हैं, तो वो हर बार पुराना शब्द यूज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने पूरक रेचक की बजाय अपना नया शब्द दिया जो मेडिकल फैकल्टी को थोड़ा अच्छा लगेगा, कार्डियक कोहेरेंस ब्रीथिंग। अब देखो कार्डियक कोहेरेंस ब्रीथिंग नाम तो अच्छा है, लेकिन प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस एकदम सिंपल है। 5 सेकंड तक साँस अंदर ले लो, 5 सेकंड तक छोड़ दो। अगर आपने एक रिस्ट वॉच है, वो भी अगर सामने रखा, तो देखो 5 सेकंड तक साँस अंदर लेते रहो, 5 सेकंड तक छोड़ो। थोड़ा आगे-पीछे हो गया तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा आप 20 मिनट तक कर लो, तो ब्रेन के अंदर ये केमिकल्स अपने आप तैयार हो जाएँगे। अब और कितना ईज़ी एक्सपेरिमेंट चाहिए। अब किसी को केवल साँस अंदर लेना, साँस बाहर छोड़ना ऐसा बोर लगता है, तो ओम चैंटिंग कर लो
या भ्रामरी कर लो, तो थोड़ा और मज़ा आएगा उनको। क्योंकि कुछ लोगों को साउंड के साथ अगर ऐसा कुछ किया तो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बिना साउंड का अच्छा लगता है। हमारे पास ऑप्शन है, या तो भ्रामरी कर लो, ओम चैंटिंग कर लो, या तो स्लो डीप ब्रीथिंग कर लो, अनुलोम-विलोम कर लो। हुँ, दोनों का इफ़ेक्ट एक ही होने वाला है कि अंत में 20 मिनट के अंत में आपके कामिंग केमिकल्स क्रिएट होंगे। तो पहली बार वो डोपामाइन का जो टॉक्सिसिटी है, वो ब्रेक डाउन होने वाली है। पहली बार डोपामाइन का जो इफ़ेक्ट है हाइपोथैलेमस के ऊपर, पूरे बॉडी के ऊपर का, वो कम होने वाला है। और ब्रेन भी रिलैक्स होगा, हमारी इमोशनल सेंटर भी शांत हो जाएँगे, हाइपोथैलेमस भी अपने नेचुरल रिदम पर आ जाएगा और सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, मेटाबॉलिज़्म है, सब रेस्टिंग रिदम पर आ जाएँगे। तो कितना प्रभाव पड़ता है। ये अब मैं बताता हूँ कि कुछ-कुछ डिसीज़ हमारे जो हो गए, माइग्रेन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कॉन्स्टिपेशन है, स्पैज़मोडिक डिस्मेनोरिया है, या स्किन एलर्जी है, अस्थमा है, इनसोम्निया है, इन सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के पीछे ये बिगड़ा हुआ हाइपोथैलेमस का रिदम ही कारण है और उसके पीछे ये इमोशनल सेंटर्स। अब हमें इन डिसीज़ को अगर रिवर्स करना है, तो बस एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट ले लो, एक कौन-सा भी रिलैक्सेटिव एक्सपेरिमेंट ले लो। हुँ? एक योगा प्रैक्टिस सब पे भारी। ये सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के लिए कोई अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो रिलैक्सेटिव प्रैक्टिस ले लो, लेकिन अब देखो इसको हमें थोड़ा बारीकी से अभ्यास करना है। क्योंकि अगर मैंने अभी पहली बार एक 20 मिनट तक स्लो डीप ब्रीथिंग का अभ्यास किया या भ्रामरी का अभ्यास किया, तो थोड़ी देर के लिए इमोशनल सेंटर्स क्वाइट डाउन हो जाएँगे, लेकिन ये जो कामिंग केमिकल्स है, उनका प्रभाव आगे के आधा घंटा, 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे चलेगा। बाद में फिर अपने स्वभाव से डोपामाइन का सीक्रेशन शुरू होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए पहले-पहले आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, निस्संदेह पहले-पहले वो जो मैकेनिज़्म है, वो टेम्परेरी है। टेम्पररी है। उ उसका एक प्रभाव रहेगा आधा घंटा, 1 घंटा, डेढ़ घंटा। बाद में फिर पुराना जो संस्कार है वो जागृत हो जाएगा और पुरानी इरिटेबिलिटी फिर एक बार आ जाएगी। अब हमें इस ऑटोमैटिसिटी को तोड़ना है, हमें इस हैबिट को तोड़ना है और उसके लिए क्या करना होगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। एक योगा टीचर एक आसानी से अगर ये बात लोगों को समझाए और लोग एक सिंपल एक्टिविटी अगर इस प्रकार से अपनाएँ, तो वो देखो ये ढेर सारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, वो रिवर्स हो सकते हैं कुछ ही हफ्तों में। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को माइग्रेन 5 साल से है या किसी को इनसोम्निया 5 साल से है या कॉन्स्टिपेशन 5 साल से, उनको मैं कहता हूँ ठीक है, अभी 5 साल में तुमने कितने मेडिसिन लिए, ये किया, वो किया, अब ऐसा करो, अभी एक व्रत रखो प्राणायाम का। देखो, व्रत ऐसा शब्द यूज़ किया तो ज़रा थोड़ा लोग सीरियस हो जाते हैं। अनुष्ठान, ये ऐसे शब्द है कि 1 महीने का अनुष्ठान। आज 27 सॉरी आज 28 मई है, तो आज से अनुष्ठान शुरू कर लो। रोज़ 3 बार करना है, बस 20 मिनट। सवेरे 20 मिनट भ्रामरी, दोपहर को 20 मिनट भ्रामरी, शाम को 20 मिनट भ्रामरी, यानी रोज़ भ्रामरी के 3 एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। जैसे पहले वाले लोग कहते हैं त्रिसंध्या, 3 बार भगवान का नाम लेंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे। तो वैसे भ्रामरी का 3 बार अभ्यास करेंगे। हुँ, कितनी इन्वेस्टमेंट है? सवेरे 20 मिनट, दोपहर को 20 मिनट, शाम को 20 मिनट। लेकिन अगर ऐसे आप शुरू करोगे और कंटिन्यू रखोगे, तो 28 जून को आपके कितने एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाएँगे? तो 3 इंटू 30 90 एक्सपेरिमेंट। यानी एक ही चीज़ को हमने 1 महीने में 90 बार रिपीट किया है। दैट रिपिटेशन जो होता है, उससे क्या होगा, एनीथिंग यू रिपीट बिकम ऑटोमैटिक। सो हर बार, हर प्रैक्टिस के बाद कामिंग केमिकल सीक्रेट होते जाएँगे। तो ब्रेन में ये चीज़ जब 90 बार रिपीट हो गई, तो ब्रेन में एक नई ऑटोमैटिसिटी आएगी टू सीक्रेट द कामिंग केमिकल्स। तो एक 2-4 हफ्ते के बाद ब्रेन अपने आप में एक रिदम पर आ जाएगा कि टू सीक्रेट द कामिंग केमिकल्स। आज क्या हो गया है, आज ब्रेन में डोपामाइन जैसे एक्साइटिंग केमिकल सीक्रेट होने की हैबिट बन गई है। तो 24 घंटे वो वही कर रहा है। अब हम नई हैबिट क्रिएट कर रहे हैं कि ब्रेन बीच-बीच में ये कामिंग केमिकल्स भी क्रिएट कर लो। तो उसके कारण
ये जो दूसरे केमिकल्स जो है एक्साइटिंग, उनका प्रभाव नियंत्रित हो जाएगा। और अब इससे दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि पहले-पहले जो टेम्पररी इफ़ेक्ट था रिलैक्सेशन का, अब वो लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रयोग है, उसके कारण आधे घंटे तक अच्छा लगा, हल्का लगा। लेकिन वही प्रयोग जब मैं 100 बार करता हूँ, तो उसके बाद जो इफ़ेक्ट आने वाला है, वो पूरे दिन भर रहेगा, पूरे 24 घंटे रहेगा। और ये पाया गया है कि कुछ लोग अगर ऐसे कुछ हफ्तों तक अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उनके ब्रेन के अंदर अब एक नई हैबिट आ जाती है, नई ऑटोमेटिसिटी आती है टू सीक्रेट दिस कामिंग केमिकल्स। और धीरे-धीरे ये कामिंग कामिंग केमिकल्स का प्रभाव इतना बढ़ता है कि ब्रेन इनको स्टोर करने लगता है। सीएसएफ में वो कामिंग केमिकल्स कुछ मात्रा में स्टोर हो जाते हैं। और जैसे वो स्टोर होने लगते हैं, उनका ब्रेन के ऊपर का प्रभाव जो है, वो और बढ़ जाता है, 24 घंटे बढ़ जाता है और उसके कारण आपकी स्वभाव चेंज होने वाला है। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसके कारण आपकी हैबिट चेंज होने वाली। तो पहले वाला एग्रेसिव स्वभाव था, पहले वाला पैनिक फोबिक स्वभाव था, पहले वाला नेगेटिव स्वभाव था, हिस्ट्रियोनिक स्वभाव था, सारे बदलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब ये कामिंग इफ़ेक्ट जो है वो परमानेंट होगा 24 घंटों तक, तो किसी भी सिचुएशन में आप शांत रहना सीख जाओ। तो पहले सिंपल सिचुएशन में आप एक्साइट होते थे या कभी-कभी सिचुएशन नहीं है तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो आप एक्साइट हो रहे थे। अब क्या होगा? अब ऐसा नहीं होगा। अब कौ सिचुएशन अगर थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है, तो भी आप शांति से उसको टैकल करोगे। तो देखो, प्राणायाम करते-करते आप ब्रेन के अंदर का केमिकल मैकेनिज़्म इतना चेंज करते हो, एक नई ऑटोमेटिसिटी ला देते हो कि आपका स्वभाव ही चेंज हो गया। अब देखो ये ज़रूरी है। हाँ, प्राइमरी स्कूल के बच्चे देखो उनमें चंचलता ज़्यादा होती है, एडीएचडी के प्रॉब्लम होते हैं। आगे जाके एडोलेसेंट पीरियड में जाएँगे, तो हाइपर इमोशनैलिटी होती है। अ, थोड़ी-सी बात से ईगो भड़कता है, एक्साइट हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं, एग्रेशन शुरू कर दे। अब इनको रोकने के लिए कुछ तो प्रैक्टिस चाहिए। हुँ, तो प्राणायाम देखो कहाँ-कहाँ मदद करेगा, क्योंकि वो उनके ब्रेन को इस प्रकार से शांत बना देगा, तो उनको एक मैच्योर पर्सनैलिटी के रूप में आगे लेके जाएगा ना। अगर ये अनट्रीटेड रहे, तो पूरे ज़िंदगी भर ऐसे स्वभाव लेकर रहते हैं और उस स्वभाव के कारण उनको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होंगे, आगे जाके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होंगे या कहीं और कुछ क्रॉनिक डिसऑर्डर होकर ज़िंदगी ऐसे ही खराब होती जाएगी। हम कहते हैं ना कि सही समय पर उनके ब्रेन को एक अच्छी दिशा मिलनी चाहिए और वो दिशा कैसे हम दे देंगे? एक सिंपल प्रयोग है। देखो, पतंजलि तो कहते हैं तत्प्रतिषिधार्थम एक तत्वाभ्यासः। है ना? तज्जपस्तदर्थ भावनम। पतंजलि कहते हैं कि केवल ओम चैंटिंग शुरू तो करो और कंटिन्यूटी रखो। तो कुछ ही हफ्तों में तथा अंतश्चेतनाधिगमो अभ्यंतराया भावश्च, यानी ओम चैंटिंग करते-करते ये चित्त विक्षेप के सारे लक्षण अपने आप निकल जाएँगे। मानो जैसे स्ट्रेस के एक्यूट क्रॉनिक जो कुछ भी लक्षण हैं या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो गए, सारे नष्ट हो जाएँगे। बस कंटिन्यूटी रखो। एक सोरियासिस का पेशेंट था, उसको मैंने देखा, वो बहुत बहुत स्ट्रेस में था, बहुत इरिटेबल था। तो मैंने कहा देखो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा आज से मैं ये प्राणायाम दे रहा हूँ, तो उसको ऐसे भ्रामरी प्राणायाम ही दिया था और कहा कि 4 महीने करो। तो मैंने ये कैलकुलेशन बताया देखो, हर दिन 3 बार करना है, 1 महीने में 90 बार हो जाएगा, 4 महीने में 360 बार हो जाएगा। एक चातुर्मास है आपका, एक आपका चातुर्मास का व्रत है, आज से शुरू करो। देखो हमारे लोगों ने ये व्रत रखे और उसके लिए कुछ टाइम लिमिट दिया, 4 महीने, 6 महीने, जिसके कारण हम कंटिन्यूटी रखेंगे ना। तो 4 महीने तक उन्होंने ये भ्रामरी का अभ्यास किया, लगभग 360 एक्सपेरिमेंट पूरे किए। उसका सोरियासिस पूरा गायब हो गया। हाँ, प्लग सोरियासिस था। नहीं तो क्या-क्या डिसीज़ मॉडिफाइंग एजेंट, कीमो ड्रग्स और कितने कितने कुछ उन्होंने मेडिसिन्स लिए थे। उन्होंने 4 महीने के बाद उसकी आँखों में आँसू थे। बोला कि जो काम इतने सीधे चीज़ से होने वाला था, उसके लिए मैं सालों-सालों भटकता रहा। ठीक है? बात ऐसी है कि ये रिवर्सल हो सकता है क्योंकि वो रिवर्सल होने के लिए पहले ब्रेन के लेवल पर रिवर्सल होना चाहिए। क्योंकि शरीर पर सारे डिसीज़ दिखते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी है, शरीर पर दिखता है,
पीसीओएस है, पीसीओडी है, शरीर पर दिखता है, लेकिन उसका ओरिजिन कहीं न कहीं आपके ब्रेन में है। अब वहाँ मैकेनिज़्म रिवर्स कर लो, वहाँ का मैकेनिज़्म रिवर्स हो गया। यानी आपका आपका फैन ठीक से नहीं चल रहा है और आप फैन के को बार-बार क्लीन कर रहे हो, क्या फ़ायदा? क्योंकि प्रॉब्लम स्विच में है। तो स्विच एक बार ठीक कर लो ना। हुँ, तो मेन स्विच से अगर सारे घरों के फैन नहीं चल रहे हैं, तो क्या सारे घरों के फैन हाथ से चलाओगे क्या? नहीं। इससे तो बेहतर है स्विच पर काम करो। तो इसके घर की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, इसके भी घर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उसकी भी। वही है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को माइग्रेन है, किसी को इंडाइजेशन है या किसी को 2-2 3-3 प्रॉब्लम है। हर एक के लिए अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक के लिए एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है। बस मेन स्विच जहाँ है, जिसको स्वामी जी ने क्या नाम दिया था? साइको फिज़िकल रिकंडीशनिंग। ओके, या उसको हम कहेंगे ब्रेन रिकंडीशनिंग। आज ब्रेन में क्या कंडीशनिंग है कि डोपामाइन बार-बार सीक्रेट हो रहा है, लिम्बिक सेंटर्स बार-बार एक्साइट हो रहे हैं। ये आज की कंडीशन है और उसके कारण हमारा कॉर्टेक्स भी नेगेटिव सोचने लगा, नेगेटिव ही फायर हो रहा है ना? तो जो ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस कॉर्टेक्स में तैयार हो रहे हैं, वो सारे नेगेटिव थॉट्स के हैं। तो ये तोड़ने के लिए हमें कुछ अलग एक्टिविटी करनी है और उसके लिए हमें सिंपल एक्सपेरिमेंट से जाना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आएगा देखो, कभी-कभी हम इतनी सीधी बात बताते हैं, तो लोग अचंभित हो जाते हैं। यानी एक माइग्रेन के पेशेंट को मैंने कहा भ्रामरी प्राणायाम करना है, तुम ठीक हो जाओगे। तो वो ऐसे देखता रहा मेरे सामने, एक बड़ी फाइल उन्होंने मेरे सामने ऐसे पटक दी। सर 5 साल से 3 बार एमआरआई स्कैन हुआ है, इतने मेडिसिन लिए हैं, इतना ये लिया है, इतनी इन्वेस्टिगेशन की है। मैंने कहा ये सारे नॉर्मल है। तो बोलते हैं इतना करने के बाद भी मुझे अभी तक किसी को डायग्नोस नहीं हुआ। मैंने कहा डायग्नोस नहीं होगा क्योंकि वो साइकोसोमैटिक है। तुम क्या चाहते हो? यानी किसी ने अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर है ऐसे बता दिया तो उसको कांग्रेचुलेट करने वाले हो क्या? नहीं कांग्रेचुलेट करोगे। तुम्हारे प्रॉब्लम जो है वो बॉडी के लेवल पर कहीं दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो साइकोसोमैटिक है। तो इसीलिए अब तुम ये भ्रामरी करो। तो फिर बोला, ये केवल भ्रामरी से इतना सब कुछ हो जाएगा?" यानी अब मैंने कहा हाँ, हो जाएगा लेकिन वो ऐसे इसको हल्के में मत ले लो। क्योंकि इस भ्रामरी के जब तुम 90 एक्सपेरिमेंट पूरे करोगे, तब मुझे आकर मिल लेना। फिर मैं आगे का बताऊँगा कि ये अनुष्ठान आगे कितना चलाना है, कितना नहीं चलाना है। लेकिन 90 एक्सपेरिमेंट तक तुम पहले कंटिन्यू तो कर लो। कंटिन्यू करने के बाद हम सोचेंगे। हुँ? लेकिन अगर तुम ये कंटिन्यू ना कर पाए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बीच-बीच में तकलीफ होगी, कभी हेडेक बढ़ेगा, कभी बाकी के कुछ प्रॉब्लम बढ़ेंगे, डरना नहीं। बस अभी तुम 5 साल से ये जूझते आए हो, तो बस 1 महीने का सवाल है। जो मैंने कहा है वो फ़ॉलो कर लो। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में दे दूँगा, लेकिन एक बार फ़ॉलो तो कर लो। तब उन्होंने फ़ॉलो किया और 1 महीने के बाद जब आया तो उन्होंने कहा, "पहली बार बिना मेडिसिन की मुझे अच्छी नींद आ रही है। पहली बार मैंने ये देखा कि हेडेक कम हो सकता है।" तो उन्होंने कहा, "क्या मैं कंटिन्यू करूँ?" तो मैंने कहा, "हाँ, आगे 4-6 महीने तक कंटिन्यू करो या हमेशा के लिए रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं।" बात कहाँ है? स्टार्टिंग ट्रबल में, क्योंकि लोगों को एक तो मेडिसिन की आदत लग गई है, तो वो भ्रामरी को भी ऐसे मेडिसिन की तरह ट्रीट करेंगे। मानो जैसे आज 28 मई है, आज उन्होंने भ्रामरी शुरू कर दिया आपके इन्फ्लुएंस के बाद। 29 मई को वो आपके सामने, "सर, कल मैंने भ्रामरी कर दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक।" हुँ? जैसे वो वायरल फीवर का पेशेंट होता है ना, आज मैंने अगर मेडिसिन और इंजेक्शन दिया तो दूसरे दिन, "सर वो कुछ नहीं हुआ है अभी तक।" ऐसे होता है। और हम कहते हैं, "अरे थोड़ा कर लो और कुछ दिन तक।" हाँ, लेकिन कुछ तो दिखना चाहिए। और एक 3-4 दिन के बाद उनका पूरा पेशेंस निकल जाता है। चौथे दिन में वो भालेकर के, पतंजलि के पूरे अष्टांग योग के विरुद्ध हो जाते हैं। कुछ नहीं उसमें, हाँ, वो दारू पी रहा था वही ठीक है, उससे स्ट्रेस कम होता है। यानी वो जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं। एक तो विश्वास नहीं रखते कि क्या भ्रामरी से इतना हो जाएगा और दूसरा वो इम्पेशेंट होते हैं और इसीलिए हमें उनको बाँधना होगा। इसलिए मैं बहुत क्लियरली बताता हूँ कि आज 28 मई है, आज से शुरू करो, लेकिन अगर आपने 28 जून तक कंटिन्यूटी रखी, तो कुछ बदलने के चांसेस दिखाई देंगे। ये आपका प्रिलिमिनरी पीरियड है, इसमें आप ये जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो पास हो जाओ, फिर आगे का देख लो। लेकिन इसमें अगर तुमने डिसकंटिन्यू किया, तो वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है।
तो फिर वो सीरियसली करते ही। अभी पहले दिनों में कैसा होता था? पहले दिनों में एक शब्द यूज़ करो, ये व्रत है, ये अनुष्ठान है, बीच में तोड़ना नहीं। लेना है तो ठीक से लेना है, एक बार लिया तो बीच में तोड़ना नहीं। तो लोगों के मन का प्रिपरेशन हो जाता था, नहीं-नहीं ये व्रत है ना? ये चांद्रायन व्रत है, ये 2 महीने का व्रत है, ये 16 सोमवार का व्रत है, ये 2 महीने का ये 40 दिन का व्रत है, ये 21 दिन का व्रत है, 28 दिन का व्रत है। इसी बहाने कुछ हफ्ते तक कर लो ना। हमने कब कहा कि 12 साल तक कर लो, फिर आपका माइग्रेन कम हो जाएगा? ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं कहता हूँ 12 साल छोड़ दो। कौन-सी भी हैबिट चेंज करने के लिए पहले 3 से 4 हफ्ते तक तो कर लो। आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है एनीथिंग यू रिपीट फॉर 3 वीक्स उसके बाद वो हैबिट बन जाती है। तो मैं कहता हूँ चलो 4 हफ्ते तो कर लो। तो इसलिए हमेशा प्रैक्टिकली लोगों को मोटिवेट कर लो। आज की तारीख से हम शुरू करेंगे, 1 महीने तक करते रहेंगे, बीच में छोड़ना नहीं। किसी भी हालत में बीच में छोड़ना नहीं। ठीक है? तो फिर वो म हम बाँधते हैं उनको, यानी उनका पेशेंस भी होल्ड करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और बाँधते हैं कि देखो ये आपका होमवर्क है, वो पहले पूरा कर लो। आधा-अधूरा छोड़ दिया तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं। तो फिर सीरियसली फ़ॉलो करेंगे। देखो सिंपल चीज़ होती है, फ़ॉलो करनी होती है बस। रिपिटेशन इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको स्ट्रेस की जो आदत लग गई है, आपका ब्रेन मैकेनिज़्म जो गलत ऑटोमैटिक मोड पर गया है, वो आपके रिपिटेशन के कारण क्योंकि आपने स्ट्रेस रिपीट किया है। बार-बार वही सोच-सोच के, वही डर-डर के, वही मैकेनिज़्म रिपीट हो गया है, जिसके कारण वो ऑटोमैटिक मोड पर गया। तो अब हम रिवर्स करेंगे उसको। तो एक छोटी-सी चीज़ है, तो छोटा प्रयोग भ्रामरी प्राणायाम हो, ओम चैंटिंग हो, स्लो डीप ब्रीथिंग हो, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन दे दो जिसमें ये 20-25 मिनट का प्रयोग आएगा, दिन में 3 बार करने के लिए मोटिवेट करो। तो देख लो कि कुछ ही हफ्तों में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएँगे। जिन-जिन लोगों ने कंटिन्यूटी रखी है, उन लोगों ने 3-4 हफ्ते के अंदर ही आकर बता दिया है कि बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम खुद अब महसूस कर रहे हैं कि बिना मेडिसिन के हम ठीक हो रहे हैं। अरे जिनको इनसोम्निया की आदत है, उन लोगों की भी ये आदत निकल गई कि अब मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मेलाटोनिन अपने आप ब्रेन में तैयार हो रहा है। तो इसके लिए छोटा प्रयोग लेकिन कंटिन्यूटी रखनी। आगे जाके जब उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनकी आस्था बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी कि हाँ, ये जो प्रैक्टिस है, वो अच्छी है और वो मुझे और थोड़ा फ़ायदा देगी तो अच्छा है। तो हम उसको मोटिवेट करेंगे कि भाई, जिस दिन आपको थोड़ा ज़्यादा समय है, उस दिन वो लंबा प्रयोग करो। तो अभी तुम छोटा-छोटा प्रयोग कर रहे थे, किसी एक दिन लंबा प्रयोग करो। रोज़-रोज़ ना सही, हफ्ते में 1 बार तो हो जाएगा ना, कि 1 घंटे का प्राणायाम हो जाएगा, तो फिर थोड़ा लंबा प्रयोग करेंगे। फिर उसमें 15-20 मिनट आप ओम चैंटिंग दे दो, फिर 15-20 मिनट थोड़ा स्लो डीप ब्रीथिंग दे दो, फिर आगे के 15-20 मिनट ब्रेथ बॉडी अवेयरनेस दे दो। ऐसा आप एक 1 घंटे का उसका शेड्यूल डिज़ाइन कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, अब क्या होगा देखा, अब ये जो बड़ा प्रयोग है, उससे और गहराई से इफ़ेक्ट आने वाला है। अरे 20 मिनट तक प्रयोग किया तो स्ट्रेस मैकेनिज़्म ब्रेकडाउन हो गया, थोड़ी देर के लिए कामिंग केमिकल्स आ गए और वही हमने 1 घंटे तक प्रयोग बढ़ाया, तो और डीप रिलैक्सेशन होने वाला है और उस डीप रिलैक्सेशन में अब फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। अब सेकंड लेवल का स्टडी है, ये पहले लेवल का स्टडी तो 20-20 मिनट के प्रयोग हो चुके। अब सेकंड लेवल में हमारा एजेंडा क्या है कि ये जो इमोशनल सेंटर्स है, उनमें जो संस्कार आ गया, उनमें जो प्रोग्रामिंग आ गया, अब हमें उसको रीप्रोग्राम करना है ना? अब देखो नेगेटिव सोचना ये आदत बन गई। ऑब्सेशन ऑब्सेशन क्रिएट करना आदत बन गई। ये एक गलत न्यूरोप्लास्टिसिटी आप देखो इस बात को समझो कि एक एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूरल कॉम्प्लेक्स बार-बार तैयार हो रहे हैं और उसके कारण वही विचार रिपीट हो रहा है। तो वो कुछ नेगेटिव विचार होगा, कुछ डिस्ट्रक्टिव विचार होगा, कुछ सुसाइड का विचार होगा, कुछ फोबिया का विचार होगा, वो रिपीट हो रहे हैं। अब विचारों पर काम करना है। उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, उनको बदलना है और उसके लिए अब थोड़ा और गहरे प्रयोग की ज़रूरत है। वो बोलते हैं अब मुझे शांत लग गया। 1 महीने के बाद जिन-जिन लोगों को एक डीप में डिप्रेशन है, वो लोग बोलते हैं 1 महीने के बाद, "अब मैं शांत हो गया हूँ, अब मैं बॉडी में हल्कापन महसूस कर रहा हूँ, अब थोड़ा फ्रेश लग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन के ये जो ग ग नेगेटिव विचार है या जो बचपन में जो कुछ हुआ उसके कारण
मुझे जो एक गिल्टीनेस आता है, एक फ्रस्ट्रेशन आता है, तो वो अभी तक निकल नहीं रहा है। अब हम थोड़ा गहराई में जाकर काम करेंगे और उसके लिए अब जो प्रयोग है, वो थोड़ा और डीप जाना चाहिए, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं डीप रिलैक्सेशन। मैं कहता हूँ, हमारे योगा हॉल में आज भी आसन को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। 1 घंटे का प्रैक्टिस है तो 55 मिनट का आसन ही होता है और 5 मिनट सिर्फ़ हाँ, थोड़ा बैठो, थोड़ा प्राणायाम कर लो। तो वो मैं कहता हूँ ये गलत बात नहीं है फिज़िकल लेवल पर, लेकिन अब हमें सोचना चाहिए कि जो साइकोसोमैटिक डिसीज़ के लोग हैं, उनके लिए हमें थोड़ा डीप लेवल का अभ्यास करना है। तो उनके लिए थोड़े गहरे प्रयोग देने चाहिए, तो उनके लिए हम ये 1-1 घंटे के प्रयोग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? तो उनका स्वभाव बदलेगा। हुँ, तो उसके लिए उनको अब हम क्या करेंगे कि हमारे योगा हॉल में हम रखेंगे कि सा शाम को 7 से 8 डीप रिलैक्सेशन का क्लास होगा। आप टाइटल कुछ भी रखो, यानी डीप रिलैक्सेशन थ्रू प्राणायाम एंड मेडिटेशन या प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर डीप रिलैक्सेशन एंड हीलिंग, ऐसे कुछ नए टाइटल रखो। उसके ज़रिए जो लोग इस साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के हैं, बहुत सालों से उसको सह रहे हैं, उन लोगों को कहेंगे कि देखो, पहले 1-2 महीने के लिए आप ये क्लास अटेंड करो। हमारे यहाँ रोज़ 1 घंटा ये क्लास होती है। देखो, क्या होता है कि जब लोग ऐसे कुछ क्लास जॉइन कर लेते हैं ना, तो एक डिसिप्लिन रहती है, हाँ, मुझे 6 से 7 बाकी कुछ काम नहीं, वहाँ जाना है। और हम ऐसा उनको एक्सक्यूज़ देंगे घर के घर में करते रहो, तो मन थोड़ा-सा चालाक होता है, कहता है आज रहने दो, सोमवार से शुरू करूँगा, 1 तारीख से शुरू करूँगा, अभी तो 28 मई है, 3 दिन जाने दो, फिर करूँगा, फिर ये घर में एक थोड़ा कुछ फंक्शन है वो होने के बाद करूँगा। ये एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूटी चाहिए। लेकिन उसके लिए आपके योगा स्टूडियो में ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ना। हाँ, जैसे आज आज देखो कुछ-कुछ योगा टीचर ऐसे पूरे हफ्ते का एक शेड्यूल जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। हठ योगा क्लास, हिप ओपनिंग क्लास, एडवांस योगा क्लास, अच्छी बात है। तो ऐसे नए टाइटल क्रिएट कर लो ना, डीप रिलैक्सेशन क्लास, डीप रिलैक्सेशन थ्रू प्राणायाम एंड मेडिटेशन। इसमें आप रखो आधे घंटे का प्राणायाम, आधे घंटे का मेडिटेशन। तो ऐसे प्रयोग होने के लिए आपके योगा क्लास में 1 घंटे का प्रयोग शेड्यूल होना चाहिए। तो लोग एनरोल करेंगे या आप लोगों को एनरोल करेंगे कि देखो आपको माइग्रेन है ना, आपको पहले ये क्लास करना होगा। और धीरे-धीरे लोग अपने आप उसको एनरोल करते रहेंगे, नहीं-नहीं वो आपका डीप रिलैक्सेशन का क्लास है, वो मैं जॉइन करना है। आज ऑप्शन ही नहीं है। आज लोगों को सिर्फ योगा के लिए आते हैं तो आसन ही करके चले जाते हैं। आपको ऑप्शन क्रिएट करना होगा। तो आपके हफ्ते के शेड्यूल में आप रोज़ 1 घंटे का एक डीप रिलैक्सेशन का क्लास रखो ना। जिसमें एक 15 मिनट आपने ओम चैंटिंग किया, 15 मिनट थोड़ा स्लोली ब्रीथिंग अनुलोम-विलोम किया और बाद में फिर ब्रेथ बॉडी अवेयरनेस किया। ऐसे एक प्राणायाम विथ मेडिटेशन ऐसा सब कुछ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि अब ये जो न्यूरल सर्किट्स बार-बार फायर हो रहे थे, एक प्रकार की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक ये ऐसी चीज़ है, जिसको हम कैसे भी रिमोल्ड करके कौन-सा भी आकार दे सकते हैं। वैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या है कि हमारे नर्वस सिस्टम में भी कोई एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म जो है न्यूरल सर्किट्स का हम क्रिएट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स हम जिस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे, हम जिस प्रकार का अभ्यास करेंगे, उस प्रकार से एक अलग कॉम्प्लेक्स जो होगा, वो वहाँ परमानेंट रूप में अटैच होगा, ऑटोमैटिकली फायर होगा। जिसको हम कहेंगे कि ये एक न्यूरोप्लास्टिसिटी आ गई। तो गलत आ गई है, नेगेटिव विचार करेंगे, सुसाइडल विचार करेंगे तो एक गलत प्लास्टिसिटी आ गई। अब हमें नई पॉज़िटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, एक एक सर ने हाथ उठाया था, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ, हाँ अरुण सर। हाँ, हाँ। हाँ नहीं, एक मिनट अरुण अरुण जी। सर, इन्होंने वो हाथ उठाया था, कांतिलाल जी पहले आप पूछ लो। हाँ, Sorry, sir, I'm disturbing in between. All these things today you have explained it very nicely, and I am using it each and every day and getting tremendous results. हुँ, Tremendous results on all the psychosomatic disorders. Even if you treat your mind, even your physical diseases also gets cured. यस। I am experiencing it every day. हुँ, Everywhere I am experiencing. So just I want to ask you, what are the this is dopamine is the exciting हाँ, chemical. So which is the calming hormone? हाँ।
calming chemicals are, as I said, the endorphin, serotonin, then GABA, GABA, gamma aminobutyric acid. Okay, thanks, sir. Hmm. Huh. Your information was very nice. Yes, yes, Every day I'm using it, every day, yes. and I'm Very getting good. tremendous results. Thanks, ठीक है sir. ठीक है, प्रश्न घेऊया. अभी ये अरुण सर. अरुण सर पूछो. थैंक यू सर, इट इज वेरी वंडरफुल क्लास. चलिए, आप लोग सर, हम सब जानते हैं कि जीवन में क्या ना बहुत अच्छी चीजें बहुत आसानी से मिलती है, बट उसे इग्नोर कर देते हैं. जो आज की क्लास में था यही था कि बहुत ही अच्छी चीज बहुत ही आसानी से हमारे तक पहुंचे. तो मेरे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है सर. पहला क्वेश्चन ये कि सर, जैसे भ्रमरी को आपने बहुत ही ज्यादा एम्फेसाइज किया कि भ्रमरी करने से बहुत सारे जो रिवर्सल प्रोसेस होते हैं बहुत इजी हो जाते हैं. तो इसका सर प्रोसीजर जो है बहुत सारे योगा मास्टर बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं. तो आप एक बार बता सकते हैं व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर, हाँ. होनी चाहिए, होनी चाहिए. Right. And question number 1 sir. Question number 2 sir, is it effective for lifestyle disease, जैसे कि लोगों को मधुमेह हो जाता है, हाँ, ठीक. साइकोसोमेटिक आपने बताया ही सर. तो लाइफस्टाइल डिजीज का प्रोसीजर है, ये बेहतर काम करते हैं कि नहीं करते हैं? लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज लाइक कैंसर, एड्स, इन सब चीजों के ऊपर भी हम इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कितना इफेक्टिव है? ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज सर, व्हाई नॉट हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. और आपने जिस तरीके से आज बताया कि हाइपोथैलेमस इज मच बिगर देन पिट्यूटरी ग्लैंड. Yes, yes, yes. ग्लैंड में आपने देखा होगा सर, एडीएच है, सेक्स हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स है. लेकिन आपने जैसे जैसे हाइपोथैलेमस बताया, आई थिंक कि हाइपोथैलेमस Very good. इज अ मास्टर ग्लैंड. सो Yes. 3 क्वेश्चन ठीक है. हैं सर. ठीक है. अच्छा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. तो बात ऐसी है कि हाइपोथैलेमस एनाटॉमिकली इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन. ठीक है. तो अभी वो ब्रेन के टीम में आ जाएगा. ठीक है. तो पिट्यूटरी कैसी है कि वो ब्रेन के बाहर है और इसीलिए पिट्यूटरी जो है वो एक स्वतंत्र ऑर्गन के रूप में हम उसको देखते हैं, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोला है. ठीक है. लेकिन उस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस. इसीलिए उस दृष्टि से देखेंगे तो हाइपोथैलेमस इज अ रियली मास्टर ग्लैंड. ठीक है. लेकिन वो ऐसा है कि पोलार्ड जब तक वेस्ट इंडीज की टीम में काम करता है, तब वो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है. मुंबई में आता है तो उसको मुंबई की जर्सी पहनकर मुंबई का खिलाड़ी बोलेंगे. ये बस अपने हम हमारा अंडरस्टैंडिंग है, बाकी कुछ नहीं. लेकिन बात है, इसीलिए हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी मैकेनिज्म जो है, वो ध्यान में रखेंगे. आखिर हाइपोथैलेमस को जो कुछ भी करना है, वो डायरेक्टली किसी को नहीं बोलता, वो पिट्यूटरी को बोलेगा, तुम इसको बोलो ऐसा करो, तुम इसको बोलो ऐसा करो. तो हर बार हाइपोथैलेमस को जब काम करना होता है, तो वो पिट्यूटरी को ही मैसेज देता है. ठीक है. अब दूसरी बात ये है कि जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है, जैसे आपने कहा डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आगे जाके मैलिग्नेंसी है, तो निस्संदेह उसके पीछे भी कोई स्ट्रेस था. तो इसीलिए ये इन प्रैक्टिस का हम अभ्यास करेंगे, तो इन इन डिसीज को हम प्रिवेंट करेंगे. या आगे जाकर अगर किसी को डिसीज हो गए हैं और अब डिसीज होने के बाद भी उनका डिप्रेशन बढ़ता जाता है ना. किसी को अगर डायबिटीज अनाउंस हो गया तो क्या वो खुश नहीं रहता? क्योंकि उसको मालूम है अब जिंदगी भर ये रहेगा. अब जिंदगी भर मेडिसिन लेने पड़ेंगे और इसलिए एक प्रकार की एक नेगेटिविटी आ जाती है और उसके कारण विशेष सर्कल है. इसके कारण स्ट्रेस बढ़ गया. यानी अभी क्या हो गया? आपको हार्ट डिसीज है. आपको कहा कि आपको एक हल्का-सा अटैक आके चला गया है. आपको हाइपरटेंशन हो गया है. आपको डायबिटीज हो गया है. अब ये डायग्नोसिस होने के कारण अब ये नया टेंशन आ जाता है. इसका मतलब अब मैं आउटडेटेड हो गया. इसका मतलब अब मैं ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा. तो वो एंग्जायटी क्रिएट करता है और वो डिसीज को और थोड़ा गहराई में लेकर कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाता है. तो इन प्रैक्टिस के कारण वो विशेष सर्कल टूट जाएगा. ठीक है? और तीसरी बात जो मैलिग्नेंसी की बात आपने बताई, उसमें भी मैं बताता हूँ कि कम से कम मन तो स्थिर रहेगा. आज कैंसर पैलिएशन के बारे में हम कहते हैं, तीसरे-चौथे स्टेज पर जब जाता है, तब आदमी समझ जाता है कि अब मेरी ज़िंदगी आगे 3 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक है. लेकिन कम से कम उस वक़्त मन स्थिर रहेगा, तो एक आगे का जर्नी तो अच्छा रहेगा ना. तो उस वक़्त ये मदद करेगा. मैंने सोच एक एक औरत को जब पता चला कि वो 4th स्टेज का कैंसर है, तो उन्होंने उस दिन से कहा कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, अब केवल ओम चैंटिंग करते रहूँगी. तो जब तक जीवित था, तब तक जितना समय मिला, वो ओम चैंटिंग करती रही. तो उससे उसका जो म देह उन्होंने छोड़ा, उस वक़्त भी वो बहुत शांति से छोड़ा.
उसके चेहरे पर भी एक प्रकार की शांति और एक स्माइल था। यानी उन्होंने लास्ट के 4 महीने में पूरा ओम चैंटिंग का अभ्यास किया, लेकिन वो इतना खूबी से किया था कि वो स्पिरिचुअलिटी को इंक्लाइन करने वाला था। तो मैं कहता हूँ हर जगह हर स्टेज में ये योगा प्रैक्टिसेस ऐसे मदद करेंगे। ओके। ठीक है? और शैलेश एक पहला शैलेश क्वेश्चन क्या था? शैलेश जी, अच्छा हो गया आपका अरुण जी, या क्वेश्चन है कोई? एक पहला मैं भूल गया, पहला क्या पूछ लिया था? सर करेक्ट प्रोसीजर ऑफ भ्रमरी सर, आपने हाँ, भ्रमरी करेक्ट प्रोसीजर ऑफ प्रोसीजर द भ्रामरी, भ्रामरी। हाँ। तो भ्रामरी देखो प्रोसीजर किसी की भी गलत नहीं होती। बस हर एक व्यक्ति अपने-अपने फैशन से करता है। बैट्समैन तो 100 प्रकार के हैं, लेकिन हर एक का कवर ड्राइव मारने का तरीका अलग-अलग होता है। हर एक का अपना-अपना एक पर्टिकुलर शॉट होता है, 360 डिग्री में मारता हूँ, ये मारता हूँ। ये बात हर एक की फैशन है। तो किसी की फैशन गलत है ऐसा कहने का सवाल ही नहीं है। जो कुछ भी कर रहा है, बस रेगुलरली करो वही। तो इसलिए कोई आपको पूछता है कि ये ऐसा ठीक है क्या? तो मेरे नज़र में ठीक है। हाँ, अगर कोई आपको ऐसा क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि ये गलत है, तो वो गलत वो गलत है, ये गलत नहीं है क्योंकि ये फैशन है। ऐसे सैकड़ों प्रकार हो सकते हैं। अब सीधा प्रकार मैं कैसे बताता हूँ कि एक गहरी साँस अंदर ले लो और छोड़ते वक़्त ऐसे अपने ढंग से ले लो। अब वो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करो जो महसूस हो सके हेड के अंदर, ठीक है? तो शैलेश शैलेश जी, हुँ, सर थैंक शैलेश यू जी एज हाँ, एज एज हाँ, यूजुअल, बोलिए। बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन हुँ, सर। हुँ, हुँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आया था सर प्रेजेंटेशन में, मीन्स बहुत आपने बहुत सिंपल तरीके से समझाया, हुँ, हुँ, लेकिन थोड़ा आप नेक्स्ट स्टेज पे, आप जब सेकंड स्टेज पे आए और आपने बताया कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी और ये बॉडी किया, हुँ, हुँ, तो सर आजकल तो ये दैट इज ये कि साइकोसोमेटिक डिसीजेस का सब जगह चर्चा है और दैट इज द मेन थिंग है ना। हुँ, और हुँ, तो सर अपन देखते हैं जो अब आपने जो रीप्रोग्रामिंग की बात की, हुँ, रीप्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन, हुँ, हुँ, तो आजकल अपन देखते हैं बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी, हुँ, हुँ, जहां वहां बहुत ये चर्चा चालू है, लोग 5-5 दिन के सेशन लेते हैं। इट विल स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू नाइट 8-10, हुँ, 5 दिन हुँ, आपका ब्रेन रिवाइव हो जाएगा री। तो हुँ, सर हुँ, ये नेक्स्ट स्टेज के जो आपने बात की है उसके हुँ, बारे में, वाइज वाइज दिस न्यूरो लिंग्विस्टिक हाँ, प्रोग्रामिंग, हाँ, इसके बारे में इसके बा थोड़ा सा गाइडेंस। राइट, राइट। इसके बारे में तो खुद पतंजलि बोल चुके हैं, बस इसको हमें योगा के प्रैक्टिस में लाना है। जैसे मैंने कहा कि पहले सिंपल रिलैक्सेटिव प्रैक्टिस करो, बाद में डीप रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करो। अब इसके बाद कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस है, जिसको पतंजलि ने टाइटलिंग दिया चित्त प्रसादनम, प्रतिपक्ष भावनम। अब देखो, इस शब्द को अब हम केवल सूत्र के रूप में पठन नहीं करेंगे, नहीं तो लोग बोलते थे वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अरे हाँ, लेकिन आपके योगा के हॉल में कभी ऐसे प्रयोग हुए हैं? होने चाहिए। भावनम का मतलब क्या है? अभी मेरे विचार करने का तरीका, अभी मेरे अंदर के आने वाले फीलिंग्स जो है वो भावनम है। अब मैं बार-बार नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो अभी का मेरा भावनम क्या है? नकारात्मक है। अब प्रतिपक्ष भावनाओं का मतलब आप सकारात्मक विचार करना शुरू कर लो। यानी एग्ज़ैक्टली अपोज़िट थिंकिंग या अपोज़िट फीलिंग। अब मैं बताता हूँ कि किसी को फ़ोबिया होता है पानी का। नहीं, नहीं मुझे पानी का डर लगता है। अब इसको प्रतिपक्ष भावना हम कैसे देंगे? तो उस वक़्त हम कहेंगे कि चलो तुम ऐसा इमेजिनेशन कर लो। अब हम उसमें मदद करेंगे उसको कि अच्छे से आधे घंटे तक प्राणायाम देकर रिलैक्स करेंगे और बाद में शवासन में लेके जाएँगे और फिर कहेंगे कि देखो अब हम थोड़ा इमेजिनेशन कर रहे हैं, डरना नहीं। बस इमेजिनेशन तो है। इमेजिन करो कि तुम एक तालाब के पास खड़े हो लेकिन तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम डूब नहीं सकते क्योंकि उतना पानी तो तालाब में है ही नहीं। अब तुम तालाब के थोड़ा अंदर गए हो, अब थोड़ा घुटने तक हो, अब थोड़ा कमर तक हो। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे उसको आश्वासन देते-देते पूरे तालाब के अंदर से घूम के लेके आ जाओ, यहाँ तक पानी में लेके जाओ, वहाँ से घूम के लेके आ जाओ। थोड़ा समय व्यतीत कर लो, एक 15-20 मिनट तक ये ऐसे इंस्ट्रक्शन देते रहो, वो इमेजिन करता रहेगा। इसी बहाने उसका ब्रेन अब पानी के साथ रहना सीखेगा, ये प्रतिपक्ष भावनम है। कि पानी मेरे लिए खतरा नहीं है, पानी से मुझे कोई डर नहीं है। तो फिर इमेजिनेशन सही, लेकिन है तो संपर्क पानी के साथ, तो ब्रेन धीरे-धीरे फ़ैमिलियर हो जाता है कि अरे पानी का डर नहीं है, अरे नहीं, नहीं और धीरे-धीरे ये डर निकल जाता है। ये एक्सरसाइज़ पहले-पहले थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन की तरह हम लेंगे, बाद में कहेंगे आप इंडिपेंडेंटली करो, ऐसे करते-करते वो डर निकाल देंगे।
ठीक है, Okay. तो ये प्रतिपक्ष भावनाओं का अभ्यास है। अब देखो Next. मैं कहता हूँ कि ये जो नए प्रयोग मैं बता रहा हूँ, उसको साइकोथेरेपी के रूप में योगा हॉल में लेना चाहिए। किसी के पर्सनल सेशन हो सकते हैं, किसी का ग्रुप सेशन भी हो सकता है ना? एग्जाम का डर सबको होता है, तो अब आप ऐसा ग्रुप सेशन में प्रतिपक्ष भावना क्रिएट कर लो। तो इसके लिए आपको थोड़ी आर्ट लड़ानी पड़ेगी कि चलो इनके भावनाम क्या है पहले देखें और उसके विपरीत। फॉर एग्जांपल पीसीओडी के 4 या 10 पेशेंट है, तो इनका हम ग्रुप क्लास ले रहे हैं, तो तब प्रतिपक्ष भावनाम देंगे कि आपके पिट्यूटरी से अब एफएसएच और एलएच अच्छे से बह रहा है, इमेजिन कर लो। अब उसका ओवरी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ऐसे-ऐसे इमेजिन करेगा, तो वो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है? Okay. तो सर, वही जैसे उन्होंने फाइब्रॉइड की बात की है, कैंसर की बात की है, तो प्रतिपक्ष भावनाम क्रिएट कर लो। अभी मैं जिस विचार में, जिस फीलिंग में रह रहा हूँ या फिज़िकली जो मेरी अवस्था है, उसके विपरीत सोचना शुरू कर लो। है ना? बोलते हैं ना सोच बदलो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो सोच बदलने की जो प्रक्रिया है, वो प्रतिपक्ष भावनाम है। सर, सोच की दिशा बदलो, जीवन की दशा बदल जाएगी। हाँ, हाँ, तो यस, यस। मनमोहन जी बहुत हुँ, सीनियर योगा टीचर है सोलापुर में, बहुत सालों से योगा थेरेपी दे रहे हैं, तो उनको हुँ, एक क्वेश्चन पूछना है। मनमोहन जी पूछो। सर, आपने बताया कि भाई समझो किसी को 15 मिनट 20 मिनट तक एक प्राणायाम कराना है हुँ, और वो दिन में 3 बार करना है और महीने भर करना है। हुँ, हुँ, अब एक ही टाइप का प्राणायाम दिन में तीनों बार करना है और तीसरे दिन करना है, हुँ। या अलग अलग भी कर सकते हैं हम? सुबह एक, दोपहर में एक, शाम को एक, हाँ। दूसरे दिन वैसे ही। अ, अभी ऐसा है कि कोई एक आपको 20 मिनट का प्लान जो है, वो तैयार करना पड़ेगा। अभी ठीक है, उसमें आप एक कौन-सा भी एक प्राणायाम ले सकते हो या 2 प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। जैसे 10 मिनट भ्रामरी किया, 10 मिनट स्लो डीप ब्रीथिंग किया, ऐसा करेंगे। हाँ, बीच-बीच में अगर कोई दूसरा कुछ प्रयोग किया तो उसमें गलत नहीं है, इसी बहाने रिलैक्सेशन ही होने वाला है। लेकिन हाँ, बॉडी लेकिन एक धीरे-धीरे दिन जो अडॉप्ट किया वही करती है दूसरे ना, दिन करना है, वही तीसरे दिन करना है क्या? सब दिन वही पैकेज करना है। ठीक है? अच्छा, मतलब एक ही टाइप का पैकेज उसको कंटिन्यूअस करने हाँ, का। कंटिन्यू करना है सिर्फ, व्रत लेना है, रिपिटेशन। व्रत हुँ, लेना है, थैंक जैसे यू हुँ, सर। हाँ 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन। हुँ, हुँ, ओके। बराबर। तो नेक्स्ट थैंक क्वेश्चन यू। लेने से पहले हम लोग थोड़ा वेलकम करते हैं योग रत्न दीपक बगाड़िया सर, वेरी सीनियर टीचर, मेरे भी गुरु हैं, मेरे भी टीचर हैं, तो वो भी हुँ। आए हैं। तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो ओपन करेंगे दीपक जी, प्लीज। हाँ, तो दीपक सर थैंक भी यू यहाँ वेरी पे, मच सर। स्वागत। थैंक आपका नाम और भालेकर सर का नाम, सब काम छोड़ के भी आ जाते हैं हम लोग। यू। थैंक यू सर। हुँ, ओके, हुँ, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछो। और प्रभा जी, पूछना है आपको कुछ? No, superb explanation in the practical way of life. Nowadays, everybody has that problem. And I am in this field from last 35 years. So, patients को किस तरह लेना, explain करना बहुत अच्छी तरह you explain. हुँ, मगर कभी कभी ओके। क्या होता है कि जब पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, तो उनके अंदर ही पेशेंस नहीं रहता है, वो हाँ, क्रिएट करने को 10 दिन लगते हैं पहले। या दैट्स माय हाँ, एक्सपीरियंस। इसलिए वो और स्टार्टिंग ट्रबल होता है। नेक्स्ट से वो थोड़ा रिकॉर्डिंग होता है, यस, बिकॉज यस, आई एम कंडक्टिंग लाइक दैट वे। यस, यस, यस। इफ यू डोंट माइंड, नो, पहले मैं स्टार्टिंग में नाच साधना लेती हूँ। सो ओम जप साधना मंत्र, जो रिलीजन स्टूडेंट है। बाद में वी आर टेकिंग ब्रीदिंग लिटिल बिट, मेडिटेशन, देन आसनास, प्राणायाम, एंड देन लास्ट शवासन डीप। तो 1.5 घंटे का सेशन एवरी डे इस तरीके से ही लेते हैं। तो बट इसलिए इट मैं इज, क्या करता हूँ कि और सर इट इज इन माय लाइफ आल्सो, आई एम इन 35 इयर्स इन हाँ, हूँ, तो मुझे बहुत सारे इश्यू थे। एवरीथिंग इज गॉन विदाउट मेडिसिन, प्रभा नॉट अ जी, हम लोग सिंगल क्वेश्चन मेडिसिन। लेते हैं। सर का टाइमिंग हाँ, बहुत ही सर अहमियत है थैंक इसका। यू वेरी मच, बहुत अच्छा हाँ, क्वेश्चन हाँ, एक्सप्लेनेशन। लेते हैं, किसी नेक्स्ट को टाइम। ठीक क्वेश्चन है तो है। पूछो पूछो, क्वेश्चन हाँ, है। मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग ट्रबल सबको होता है, इसलिए देखो पेशेंट का पेशेंस होल्ड करना ये हमारी कला है। इसलिए हम कुछ बातें ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि देखो 1 महीने के बाद ये आपको दिखने वाला है, 3 हफ्ते के बाद ये दिखने वाला है, तो तब तक वो करना ही है, किसी भी तरीके से। होता है ये एंग्जायटी डिप्रेशन के लोग बहुत तकलीफ देते हैं। फिर वो कहेंगे 20 मिनट का है वो 5 मिनट का करूँ क्या? 2 मिनट का करूँ क्या? ऐसे भी एक्सक्यूज़ माँगते हैं। लेकिन आप अपनी जगह कुछ जगह स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। You explain very nicely, हाँ, very nicely. Thanks a lot, sir. Thanks a थैंक यू, lot. हाँ, थैंक यू, ओके थैंक यू। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मोनाली जी, ओवर टू यू। हुँ, Uh,
नमस्कार सर, हम्म, हालेकर सर। हम्म, बहुत ही अच्छे से आपने इतनी सुंदर कॉन्सेप्ट समझाई है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि खाली मैं आपको बोलूं कि श्री गुरुभ्यो नमः।